Is it okay? Yes. Yeah. Okay. So, good evening, everyone. I welcome you all to this demo batch for the AWS DevOps course. So, before going forward, just let me know which language is comfortable to all of you. Okay. All the English, or I can take some Hindi part also. Okay. Just be interactive, whatever it is. क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए. You are investing your 1 to 1.5 hour here. So you should be able to take something from this time. Okay. So just let me know. I will take some slide and after that I will take your feedback. Okay. So this is our AWS DevOps course, and here actually it will be the combination of AWS Cloud as well as the DevOps course. Okay. See, these are two different branches. Okay. It is not one field, I can say. Cloud, which is the DevOps one, it is the different, and the DevOps again, it is a different branch. Okay. So what we have done, we have taken both of them together so that you will get the more opportunities in the market. That is our main concern. मतलब आप सिर्फ AWS के लिए अगर कोर्स कर रहे हो तो उसके अपॉर्चुनिटीज थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, और अगर डेवॉप्स का देख रहे हो तो उसके भी सिर्फ डेवॉप्स के लिए आपको लिमिटेड हो जाएंगे. ठीक है. बोथ ऑफ देम रिलेटेड. व्हेन यू आर वर्किंग इनटू द आईटी फील्ड, बोथ ऑफ देम रिलेटेड टू ईच अदर. बट अगर आप कुछ सीखने की बात कर रहे हो तो आपको AWS एक डिफरेंट फील्ड है और DevOps एक डिफरेंट फील्ड है. इनके टूल्स अलग होते हैं. AWS की सर्विसेज होती है. So what we have did, we have combined this all together. Okay. So I'm your instructor, and of course there should be some qualities, some qualification should be in your instruction, which makes it should makes eligible to teach you. Correct. So what I am eligible, what I think, I am a AWS certified trainer. I am also certified in the Terraform, and I mean working in the startups as well as the MNCs. And I have published my some research papers, and also I have conducted the workshops in my companies. Okay, my in previous organizations, I have taken sessions for the corporate. So I'm a corporate trainer also. And along with that, I was in the like I am masterate. I have done the masters. So I was attached to the engineering colleges. I have taught to them also. So I have experience in the teaching also. So I think by this sense, it makes me eligible to teach you. Okay, whatever knowledge I have gained, what I'm gaining right now, that makes me eligible to teach you. So this is our course plan. So how we will proceed? So the main thing is, guys, we have strategically we have developed our course in such a way that whatever is the market demands, okay, according to that we have prepared our syllabus. Okay. So for that, what I did, first thing I did given the interviews. Okay, I have given the interviews for different roles, for different experiences. Okay, I have given, you can say, 100 plus interviews till now, so that I can give what is the requirement of the market. ठीक है, मुझे ऐसे नहीं समझेगा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है. सो मैंने उसके लिए क्या किया, 100 प्लस इंटरव्यूज दिए हैं, सो दैट आई कैन गेट कि अभी कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है. अकॉर्डिंगली आई हैव नोट डाउन दैट वॉट एवर द अपडेटेड सिलेबस, एंड वी हैव डिजाइन दैट सिलेबस अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये चीज मैंने एक डिफरेंटली की है, आई थिंक, टू market our syllabus. Okay. So this is the first thing. We are preparing you according to the market. Mind it. Okay. तो जो टूल्स अभी मार्केट में सबसे डिमांडिंग है वो हमने इंक्लूड किए हमारे सिलेबस में. देन वी विल हैव द क्यूए आंसर सेशन. वी हैव आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स. whatever issues you are facing, you can paste it down there, you can ask there, I will answer them. We will have the groups. Okay. Second, third thing, it will be the interview based preparation. मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला है, I have given the interview, so I know. In fact, to be frank, right now I am in the interview panel of my organization. ठीक है, right now I am taking the interviews for the DevOps engineer.
So I know what questions are expected from the candidates. Okay, what are they like? We have our 3 to 4 people, that senior people, we are including into the interview panel. That's why I know what questions are expected from the candidate, and that's what we are taking. Okay, so when I will teach you any topic, so I will give you from this topic, these questions are expected. So what is your role? You have to note it down, because these, it is not like that I will just prepare one different session for that. No, I will teach any topic to you, and whenever I will remind, see, from this syllabus these questions are expected. So while teaching I will tell you from this topic these questions are expected. So your role, your job is that you have to note it down it properly in your notebook. So what will be the benefit of that? When you will do the revision or you will prepare by yourself, at that time you will come to know that from this topic these questions are expected. So you will prepare in that context. I hope I'm clear. Then the fourth point is AWS certification POV. So we will guide you if you want to do the any certification in that. Okay, so there are there two main questions from the candidate I always get. Is it necessary or is it compulsory to do the AWS certification? So answer is no. There is no any compulsion that you have to do the AWS certification. Just the thing is that if you are AWS certified, the 90% chances are that your resume will be shortlisted. Okay, because see, from the client guys, we have sometimes it is specified that the candidate should be the AWS certified. So in that case, the organization will look out for the AWS certified candidates only. So in that case, you will be shortlisted. And even if it is not there in the like conditions from the clients, it's always good to like have that if you are certified. Okay. So, but that is a different thing. First thing, you should have the knowledge. You should be well prepared. It is not necessary to be frank, but it is good to have thing to be certified. Okay, this can be your next milestone, you can say. In that also we will guide you if you want to do the certification. Then the next point is we will have the different practical session, that is hands on, which is the main part. Okay, first thing is if your background is non technical, the thing should be clear from the scratch. ठीक है, आईटी में क्या होता है, काम कैसे होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, पहली चीज. And after that you should have the hands on practical. So whatever topics we are taking, I will give you the assignments from that. I will give the different small tasks that you have to complete it by your own. And if you are facing it any issue, you have to share it on your group or something, you can ask anytime. So that what will happen, combinedly you will be preparing for your the interviews. Second thing, you will have the hands on experience on the console, and you will be fully prepared for that case. Okay, ठीक है. अब हमारी मेथड कैसे होंगी ये करने के लिए? So our strategy will be, you will form the group of students so that you can practice this among yourself, you will discuss it amongst yourself, and if it is not getting solved by your answer, then you will ask to me, we can discuss it, we can, everyone will have different approaches. Okay, so that is the best thing, we are forming the group. Then sessions will be conducted on the weekends mostly, and as of needed after that, by consulting with all the candidates, we can add some sessions in the weekdays also, but we will discuss it in our batch. Okay, so we will have the sessions like I will take the continuous learning teaching sessions. We will have the QS session and practical assignments will be given to you. And the last point, which is the mock interviews, which is important one, very important. ठीक है, मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं? आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इंटरव्यूज देते हो जैसे कि ऑलरेडी आपका इंटरव्यू हो रहा है एज ऑफ दैट. ठीक है, मतलब आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हो. सो आफ्टर से आफ्टर 2 weeks or 3 weeks, continuously in the recurring session we will have the mock interviews, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है, आई अश्योर यू गाइज, दोज हु आर टेकिंग द सेशंस कंटिन्यूअसली, doing the sessions assignments continuously and just attending the mock interviews. ठीक है, मुझे I know both most of you are the working one. ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होगा, बट सिर्फ आप
प्रिपेयर हो या नहीं हो, बट ऑलवेज अटेंड द मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, पहली थिंग आपकी जो डर है वो आपका चला जाएगा। आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे कि ठीक है इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप वो नोट डाउन करके रखोगे तो एटलीस्ट आपकी एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इंटरव्यूज के लिए, मॉक इंटरव्यूज के। उसके लिए आपको रियल इंटरव्यूज, आपको फेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो रियल इंटरव्यूज होंगे उसके पहले आप बहुत सारे 5 6 8 10 जो भी मॉक इंटरव्यूज है ऑलरेडी यू हैव फेस्ड इट। So for that, I will take some mock interviews and I will call some faculty from the other, like those who are already working in the organization. I will call them to take your interviews. ठीक है? In this slide, do someone have any inquiry or any doubt? Or can we move further? Pick up guys, okay? आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको आदत डालो, अगर इंटरव्यूज देने हैं, स्विच करना है, नए फील्ड में जाना है, तो जस्ट मेक इट हैबिट कि आपको बोलना है, ओके। सो आई जस्ट टेक इट लाइक Okay. वहां पे फाइन। was someone speaking? Sumit. Yeah, say Smith. Yes, I said yes. I'm Okay, listening. okay, fine. Thank you. Yeah, thank you. So, coming towards the prerequisites, if someone asks me, ma'am, what is the eligibility to take this course? So, to be frank, you don't have to be do any something eligibility for this. Just the thing is, your mind should be prepared that I have to take the efforts to switch this to feel I'm ready to take the efforts. I'm with you, the ATS team is with you. That's it. Whatever things I'm telling you, take the sessions, do the assignments, face the mock interviews, and by doing the practice, definitely you will be able to crack any role. Okay? So that's it. There is no any prerequisites for this. Either you are from the technical background, non-technical background, nothing matters. Now, okay, you will say, okay, ma'am, this is the plan, everything is okay, fine. But the hands-on part, which is very important, the practical session, where we'll practice it. ठीक है, हम practice कहाँ करेंगे? So guys, अभी just AWS का just अभी change हुआ है, एक उन्होंने just एक terms and condition डाली है। Otherwise, पहले तक ये 12 months तक free था, just now it has come to the 6 months. ठीक है, हमें जो free account मिलता है, it will be valid for the 6 months, but 6 months भी बहुत है, ठीक है। When does it उनका change? एक limited, just now it has changed on the 15th date, it has changed. Now the validity has come to the 6 months. Okay, previously it was the 12 months. जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है AWS की तरफ से, वो हम लिमिटेड एक्सटेंट तक फ्री में एलिजिबल है, ठीक है। जो हमारे प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। हम जो भी उनके सर्विसेज यूज कर पा रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और अगर कहीं पे हमें कुछ लग भी रहा है दैट वी हैव टू यूज इट, वी कैन यूज इट। एंड इन द सेशंस इटसेल्फ आई विल टेल यू, अगर कोई बिल आ भी जाता है गलती से, ठीक है, अगर गलती से कुछ सर्विस ऑन रह गई और हमारा कुछ बिल हमारा जनरेट हो गया मंथली, सो आई विल टेल यू व्हाट आर द वेज टू वे इट ऑफ, ठीक है। कुछ वहां पे वे ऑफ करने के लिए तरीके हैं, मैंने खुद किए हैं। सो आई विल टेल यू हाउ वी कैन वे ऑफ दैट बिल्स। सो डोंट वरी, that is the benefit for us that AWS is giving this 6 months free limited edition for the practice. And for the most of the services, for the free limit is there and it is sufficient for us to do the practice session. Okay, now what we are going to cover, this is the main part, ठीक है। In this AWS DevOps course, what we are going to cover, so these are our modules. In that we have, if you observe, ठीक है, आप लोग आई थिंक आई जस्ट गेस कि आप मोस्ट ऑफ फ्रॉम द टेलीकॉम बैकग्राउंड हो, तो आपके लिए आईटी फील्ड या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड ये आपके लिए नई होगी, ठीक है। तो आपके लिए पूरा स्क्रैच से लिया गया है, एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। इफ यू आर फ्रॉम द नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, यू आर फ्रॉम द बीए आल्सो, फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे टॉपिक्स आपके लिए है जो पूरे स्क्रैच से कवर होंगे, ठीक है।
फर्स्ट वन इफ यू सी मॉड्यूल वन इट इज द अजाइल वाटरफॉल। मतलब क्या, आईटी इंडस्ट्री में एक काम करने का तरीका है, ठीक है, एक मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको कोई भी पोर्टल, जॉब पोर्टल आप अभी सर्च करना, ठीक है, उसमें डेवऑप्स से AWS इंजीनियर की वैकेंसी देखो और उसके जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें आप देखोगे कि उसमें स्पेसिफाई किया हुआ रहता है कि कैंडिडेट शुड बी वेल अवेयर ऑफ द अजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, मतलब जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप की जाती है उसके लिए एक तरीका होता है विच इज बीइंग यूज्ड इन द आईटी इंडस्ट्री, उसे अजाइल मेथोडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्क्रैच। ठीक है, कैसे काम करते हैं, सो वी हैव इंक्लूडेड अजाइल वाटरफॉल। आपको नेटवर्किंग बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है, OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, ठीक है, ये आपको जस्ट बेसिक पता होनी चाहिए, वो हमने इंक्लूड किए हैं। थर्ड मॉड्यूल इट इज द लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईटी इंडस्ट्री में 80 to 90% लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी बैकग्राउंड मतलब कोई भी रोल हो, आइदर यू आर अ डेवलपर, आइदर यू आर अ टेस्टर, आइदर यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, इनमें से आपको कोई भी रोल हो, या फिर आप मैनेजर हो, टेक्निकल मैनेजर हो, नॉन टेक्निकल मैनेजर हो, कोई भी फील्ड हो आईटी इंडस्ट्री में, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके कमांड्स आपको आने चाहिए, आपको लिनक्स पे ऑपरेट करते आना चाहिए। ठीक है, अगर ठीक है आपको डेवऑप्स अभी नहीं करना है, इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे टेस्टिंग में जाना है तो भी आपको लिनक्स आना चाहिए, या फिर आपको डेवलपर में जाना है तो भी आपको लिनक्स आना चाहिए। ठीक है, लिनक्स से जो कुछ कमांड्स है वो आपको अच्छे से वेल अवेयर होना चाहिए। हम स्टार्ट लिनक्स से ही करेंगे। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, AWS जो अभी हमारा है इट इज द क्लाउड। ठीक है, मैं और वही टॉपिक लेने वाली हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड के पहले चीजें क्या थी और उसके बाद में क्या चेंज हुई है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वी हैव इंक्लूडेड दैट। और आज के सेशन में हम आज यही लेने वाले हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी के पहले चीजें कैसी थी और उसके बाद क्या चेंज हुई है। देन we will start with the AWS services. AWS it is nothing but the Amazon Web Services। उनके कौन सी सर्विसेज ये पूरे हमने यहाँ पे लिए हैं जो हमारे लिए यूजफुल है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। वी आर टेकिंग ऑल ऑफ देम दिस। ठीक है, यहाँ पे पूरे मैंने वहां पे पूरे नोट डाउन नहीं किए और एक दो इंक्लूडेड है। देन वी विल स्टार्ट विद द डेवऑप्स टूल्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स मतलब इसमें जो जो टूल्स एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आने चाहिए वो हमने लिए हैं। हमने इंक्लूड किया है गिट, जेनकिंस, डॉकर, एंसिबल, टेराफॉर्म एंड कुबरनेटिस। गाइस कुबरनेटिस जो पार्ट है वो मोस्टली कोई लेता नहीं है, उसके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस है। कुबरनेटिस में भी 4 से 5 सर्टिफिकेशंस लेवल्स है। ठीक है, बट वी आर इंक्लूडेड इन, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यूज देने हैं मार्केट में, सो यू शुड बी अवेयर कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है। तो कुबरनेटिस आपको उसका एटलीस्ट बेसिक पार्ट्स कि आपने कुछ 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर तक काम किया है और आपको कुबरनेटिस पता है, ये आपको पता होना चाहिए। So that's why we have included the Kubernetes, and the last part will be we will take the projects. ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करोगे, आपके पास एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि आपने इंप्लीमेंट किए हैं, सो दैट यू कैन इंक्लूड इट इन योर रिज्यूमे। ठीक है, सो दिस विल बी अवर सिलेबस। ठीक है, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, एनी डाउट टिल दिस यू आर फ्री टू आस्क। पिकअप गाइस, कुछ भी मन में चल रहा है, देखो हम किसी को कोई जानते नहीं, जो भी हमने सेशन ज्वाइन किया है, ना आप मुझे जानते हो, ना आप में से कोई किसी और को जानता है। ठीक है, इसलिए डरो मत, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ पूछना है, जस्ट पिकअप। आई I थिंक have इट इज one क्लियर question. टिल नाउ देन। यस, हु इज स्पीकिंग? Uh, Sumit,
Yes, Sumit, please. Yeah, I have one question. I have given earlier interviews, but interviewers also always ask you need to have experience of minimum 1.5 to 2 years in DevOps. Then you can Hmm. switch. And it's not for freshers or they for entry level jobs, entry level persons. So is it So right? you are saying you have given the interviews as a fresher? Yeah, earlier. Okay. Right now So you are someone working said on to me, fresher? I am working now, but but I am started as in field in DevOps field, but not so much of DevOps right now. But I have faced a lot of struggles in this profile. Like you have See, to be right now experienced what is your profile, Sumit? DevOps profile, but not in cloud. You are in the DevOps itself. Yes, yes. Yeah, Okay. Sumit, So if you are working in DevOps, why require this training? First, my question from you. You are already Yes. working now. You have started You have on started. this profile. If you Yes. are totally fresher, you are doing any course, and you already know in college if there is placement done, it's a good. Otherwise, wherever you can take the course, you need internship certificate and some 6 month or 1 year experience certificate. Okay. Okay. For selection of any company. Right now you are working, no problem, no? Yes, yes, In this domain. yes. Okay. So yeah, you can carry on, no problem. yeah. Okay. So we will come to the cloud concept now. ठीक है? Everyone who has joined, उनके लिए एटलीस्ट आज का कुछ टेक अवे होना चाहिए. ठीक है? कुछ आप अगर कुछ अटेंड कर रहे हो तो आपने कुछ सीख के जाना चाहिए यहाँ से. करेक्ट? सो वी विल सी फर्स्ट व्हाट इज द क्लाउड. ठीक है? किसी को कुछ पता है कि क्लाउड क्या होता है? ठीक है? क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मे बी यू हैव लिसन, बट डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द क्लाउड? नॉट टेक्निकली, जो भी आपको समझा है अब तक कि क्लाउड मतलब शायद ये हो सकता है. व्हाट इज इट? चलो देखते हैं. ठीक है? कोई बात नहीं. इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया वी कैन जस्ट लुक इट. ठीक है? You can see my screen, right? Yes. Yes. Can anyone just confirm? Yes, yes. Okay, thank you. So what I was talking about, guys, क्लाउड कंसेप्ट क्या है ये मुझे आपको बताना है. ठीक है? एटलीस्ट क्लाउड के कुछ नाम बता सकते हो जो सुने हैं आज तक. क्लाउड जो अभी हम सुनते हैं उसमें कुछ नाम पता है आपको? AWS, Azure, and one more. GCP. Correct? AWS. Correct. Azure and Azure. Google Sky GCP. GCP. It is called as GCP. ठीक है? Google Cloud Platform. So these are the main competitors guys. ठीक है? ये छोड़ के भी बहुत सारे मार्केट में क्लाउड्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, बट उनका परसेंटेज हम बाद में देखेंगे, बहुत कम है. बट दीज आर द मेन कॉम्पिटिटर्स. ठीक है? ये दूसरे के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के. उनमें से सबसे ज्यादा मार्केट जो ऑक्यूपाई किया है वो है AWS. ठीक है? स्टिल इट इज ऑन द टॉप. ठीक है? सबसे ज्यादा मार्केट ऑक्यूपाई किया आज भी AWS ने. इनफैक्ट इनका रेवेन्यूज भी सबसे ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में. ठीक है? दैट्स व्हाई वी हैव चूजन द AWS क्लाउड. ठीक है? और जो
चीजें एक बार हम AWS में सीख ले, कंसेप्ट पता चल जाए, सिर्फ नाम चेंज होगा, कुछ थोड़े से तरीका ऑथेंटिकेशन का चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट सर्विसेज सभी क्लाउड में वही होते हैं, ठीक है। अगर आपको AWS अच्छे से आ जाता है सो यू कैन इजीली ग्रैब द Azure आल्सो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कोई प्रोजेक्ट आता है कंपनी में एंड इफ दे आस्क यू, ठीक है आपने AWS में काम किया है सुमित, बट कैन यू वर्क इट ऑन द Azure, दे विल आस्क यू। तो आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट सबके सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यू शुड से यस, Okay. आई विल बी एबल टू कैप्चर द Azure, आई कैन वर्क ऑन द GCP आल्सो, ठीक है। कंसेप्ट सब में सेम ही होते हैं, सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़े बहुत नाम चेंज हो गए, थोड़ा बहुत उनका UI चेंज होगा, बट द सर्विसेज विल बी मोस्ट ऑफ द सेम, ठीक है। जो भी चीज है या फिर हमें ऑफर करता है क्लाउड, उसे हम कहते हैं सर्विसेज, ठीक है। वी कॉल इट एज अ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज AWS के डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, ऑलमोस्ट 110 के ऊपर उनके सर्विसेज है, बट हमें पूरे सीखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे डेवऑप्स के लिए काम में आएंगे उतने हम सीखेंगे, 10 से 15 जो भी सर्विसेज हमें लगती है दैट वी आर गोइंग टू लर्न, और वो आपके आपके रिज्यूम में आपको स्पेसिफाई करनी है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्लाउड कंसेप्ट, ओके। सो ठीक है, इफ आई आस्क यू, आपने क्लाउड यूज किया है गाइस? कोई बता सकता है मुझे कि आपने कभी क्लाउड यूज किया है? ठीक है, Yes, ma'am. No, ma'am. देखो, जो आपका जीमेल अकाउंट है सबका, Yes, yes. एवरीवन हैज अ जीमेल अकाउंट। Yes. गाइस आपको 15 GB डेटा मिलता है, 15 GB आपको स्पेस मिलती है, एम आई राइट? Yeah, yeah, Yes. yeah. इट इज नथिंग बट योर क्लाउड। इन द बैकग्राउंड आपको 15 GB जो स्पेस मिल रही है वो GCP से मिल रही है। सो यू कैन प्राउडली से एवरी वन ऑफ यू हैज यूज्ड द क्लाउड, ठीक है। आप सब ने क्लाउड यूज किया, आप क्लाउड यूज कर रहे हो, बस आपको पता नहीं था कि ये क्लाउड है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट नाउ, इट इज बहुत सीधा है। आप जैसे, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ योर लैपटॉप, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप जैसे हमारी सर्विस है वैसे हम AWS में बना सकते हैं। सो Amazon एक ऐसी कंपनी है, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए, ठीक है। डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर्स में सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ जैसे हम अंडरस्टैंड कर सके, इट इज अ लार्ज पूल ऑफ मेमोरी, ठीक है। इट इज द लार्ज पूल ऑफ मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या, जैसे 1 MB की कोई फाइल है, मतलब ये इसकी हम इसमें काउंट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज कैन यू गो ऑन द म्यूट प्लीज। Okay, so we were talking about the data centers. Data centers, it is nothing but the large pool of memory, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए AWS ने, ओके। बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए, ओके। अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली उनका लोकेशन क्या है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, उनका बहुत बड़ा मेंटेनेंस होता है। उन्होंने ऐसे बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए, मतलब क्या, उसका कुछ मेमोरी होगा, वी कांट काउंट इट कितना मेमोरी है, बहुत बड़े बड़े मेमोरी स्पेसेस है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, इनमें से कुछ पार्ट हम अलोकेट कर रहे हैं इंटरनेट के तरीके से, ठीक है। वी आर इंटरैक्टिंग विद दिस डेटा सेंटर्स ओवर द इंटरनेट, और जितना पार्ट मुझे चाहिए यूज के लिए, आई एम जस्ट यूजिंग इट, ठीक है। मैं उतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ AWS को कि मुझे ना इतना पार्ट चाहिए सिर्फ यूज करने के लिए, से फॉर 2 hours फ्रॉम दिस guys, please, those who are on not mute, please go on the mute, please. You are disturbing to others, ठीक है। These are the data centers
जो AWS ने बनाए हैं कहीं पे, ये यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। और यू आर वन यूजर, आपने क्या किया, उनका एक कंसोल है AWS का, ठीक है, यहाँ पे अपना खुद का अकाउंट बनाया ईमेल आईडी वगैरह डाल के, सो यू गॉट वन आइडेंटिटी, और थ्रू दैट आइडेंटिटी आपने रिक्वेस्ट किया AWS को कि मुझे इसमें से सिर्फ ಸ್ವಲ್ಪ తెలుసునా బండి ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు దానికి ఉంది ఇది అసలు అది కాదు Brijesh ji, please can you mute everyone? మాట్లాడు నువ్వు మాట్లాడు నేనేం చేయను Everyone, please mute yourself first, please. Just wait. Move those who are not listening. I hope screen is visible now. Am I audible also again? Yes, Please yes. confirm someone. Yeah. Okay. So we were talking about that. AWS has created the big data center somewhere, and what we are doing, we are creating one profile. ठीक है, उनका एक प्रोफाइल है, मतलब AWS का कोई कंसोल है, वहां पे मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रही हूँ तो मुझे एक आइडेंटिटी मिल जाती है। थ्रू दैट आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग द AWS कि मुझे कुछ डेटा इसमें से यूज करना है, ठीक है, अलाउ मी, I want to use some data, some services from these data centers, allocate some memory for me, and कैसे हम कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट जो यहाँ पे जो सर्विसेज या फिर जो मेमोरी हमें कुछ मिल जाती है, जैसे बहुत सारे मैनेजिंग सर्विस होती है, इट इज कॉल्ड एज मैनेज्ड सर्विस, ठीक है, मैनेज सर्विस, जो कुछ भी सर्विसेज AWS खुद मैनेज कर रहा है वो हमें कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए दे रहा है, वी आर यूजिंग इट, रिलीजिंग इट, हमारा काम हो जा रहा है, और जो मैंने अभी सपोज 2 आवर्स के लिए यूज किया वो सर्विस, तो आई विल जस्ट पे फॉर दिस 2 आवर्स, ठीक है, दैट इज द बिग बेनिफिट। सो क्लाउड इज नथिंग बट द बिग पूल where we are renting out some services, we are renting some space, we are doing our work and we are releasing it again. Is it clear? जस्ट एक सिंपली मैं बता रही हूँ कि क्लाउड क्या है, एक बिग पूल है, क्लाउड मतलब कहीं पे भी लोकेटेड है क्लाउड, जैसे डेटा सेंटर्स, यहाँ पे हम कुछ चीज, कुछ सर्विसेज कुछ टाइम के लिए अलोकेट कर रहे हैं, खुद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं AWS को, वो हमें अलोकेट कर रहा है, जैसे हमारा काम हो जाता है हम इसे रिलीज कर देते हैं, ठीक है, वी आर रिलीजिंग दिस अगेन। सो दैट इज नथिंग बट जो भी हमें डेटा सेंटर से, सर्विसेज से जो Amazon खुद मैनेज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अस, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाउड, ठीक है। और ये जो क्लाउड होता है, इसके डिफरेंट कंपनीज ने खुद के डेटा सेंटर्स बनाए, जैसे Amazon ने खुद का बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का बनाया, गूगल ने खुद का बनाया, सो अकॉर्डिंगली दे नेम्ड इट। Amazon ने जो बनाया उसे नाम दिया AWS, माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया दे नेम्ड इट Azure, और गूगल ने जो बनाया दे नेम्ड इट GCP। तो ये AWS क्लाउड हो गया, ये हो गया Azure क्लाउड, और ये हो गया GCP क्लाउड, ओके। सो आई विल फॉर दैट आई विल शो यू वन डायग्राम, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। Okay, so guys,
मैंने क्या किया है, इसके लिए एक एनालॉजी बनाई है। एनालॉजी मतलब क्या? whenever always remember, okay, when you want to prepare any topic, कुछ कंसेप्ट समझना है तो उसे रिलेट करना सीखो किसी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे आप रिलेट करते हो तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आने लगती है। तो फॉर दिस AWS क्लाउड मैंने एक एनालॉजी ली है, जैसे लाइब्रेरी। ठीक है, अभी आपको कोई बुक अगर रीड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि आप बुक खुद खरीदोगे, यू विल बाय इट, और सेकेंड ऑप्शन वी हैव द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी से आप वो बुक इश्यू करोगे, उनको आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे 15 डेज के लिए चाहिए, आई विल रीड इट एंड आई विल रिटर्न इट टू यू, और 15 डेज के जो चार्जेस है वो आप उनको पे करोगे। ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका क्या हो गया गाइस, आपको उतना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट, बुक रीड करने के बाद आपका काम तो हो गया, आपके पास वो बुक वैसे ही पड़ा रहेगा। सो द बेटर ऑप्शन इज दैट यू विल गो टू द लाइब्रेरी, यू विल टेक दैट इंटरेस्टेड बुक, यू विल रीड इट, आपका काम हो गया, आपका इंटरेस्ट वहां पे हो गया बुक का रीड करने का, एंड यू विल रिटर्न इट। दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, सो सिमिलर वे, जैसे आपको कोई सर्विस चाहिए, यू कैन टेक द एग्जाम्पल। सर्विस मतलब क्या? जैसे आपको एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, लैपटॉप आप सबको पता है, आप यूज करते हो। एक पीसी पता है हमारे सिंपल लैंग्वेज में। अगर वो मुझे सर्विस चाहिए तो मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है, एक तो मैं लैपटॉप खुद खरीद लूं, या फिर व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू द AWS और मैं इसे कह सकती हूँ कि मेरे लिए ना कुछ सिस्टम बना दो, एक लैपटॉप बना दो, एक इंस्टेंस, एक सिस्टम, मतलब मैं उसको डिफरेंट नाम बता रही हूँ कि AWS को मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे लिए एक लैपटॉप बना दो, एक पीसी बना दो, बट वो मुझे सिर्फ 6 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, 5 मिनट के लिए चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट आई विल पे ओनली फॉर दैट मच टाइम। So AWS will say, okay, no issue. You use it, make it, and return it. So that is the thing. क्या होगा यहाँ पे? As you can see, what we are doing. See, I have written some here. EBS, Virtual Disk, S3, EFS, S3. ये जो है guys, ये उनकी सर्विसेज है। ठीक है, one of them is EC2. ठीक है, what I'm saying, EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। मतलब जैसे हम पीसी बनाते हैं या फिर एक लैपटॉप बनाते हैं, वो उससे रिलेट आप कर सकते हो। EC2 सर्विस जो है रिलेटेड टू दैट। ठीक है, एक कंप्यूट सर्विस है, तो यू कैन रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू लैपटॉप और पीसी जो हम बनाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, आप AWS लाइब्रेरी में गए और आपने बोला कि मुझे EC2 नाम की एक सर्विस दो जो मुझे 2 घंटे के लिए यूज करनी है। AWS said, ओके, नो इशू। आपको सिर्फ आपके उनके कंसोल में जाना है, कुछ टैब्स क्लिक करना है, और क्या कर रहे हो, आप एक पीसी खुद का बना रहे हो, आपने यूज किया, आपका काम हो गया 2 घंटे बाद, और आपने उसे डिलीट कर दिया। सो यू आर रिटर्निंग इट टू द इस, मतलब AWS को आपने रिटर्न कर दिया, उनकी जगह उतनी फ्री कर दी। सो 2 घंटे के लिए आप सिर्फ पे करोगे। ठीक है, यू हैव यूज्ड योर पीसी और लैपटॉप जस्ट फॉर 2 आवर्स, एंड अगेन यू डिलीटेड इट, आपका काम हो गया, आपने डिलीट कर दिया। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। सो इसमें क्या हुआ, हमने रेंट आउट किया कुछ सर्विसेज, जैसे आपने यूज किया उतने के लिए ही आपने पे किया। करेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज द पे एज यू यूज। जैसे आप यूज कर रहे हो आप उतना ही पे कर रहे हो। ठीक है, so that is the analogy. AWS, you can think it as a library. It has the different books. Books मतलब क्या, यहाँ पे think it as the services. AWS के different services है. You are requesting them and you are using one of them services for whatever time you want to use it, and you will pay only for that portion. ठीक है, अभी आपको उसका important नहीं समझा होगा कि पे एज यू गो का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, so I think at least concept you know what is AWS. You can think it as a library. They have different services. We will
use the services and we will pay only for that much part, जो हमने यूज किया उतने के लिए हम पे करते हैं, ठीक है ना। सो ठीक है, ये समझा एटलीस्ट थोड़ा बहुत कि क्लाउड कंसेप्ट क्या हो सकता है। क्लाउड यू कैन थिंक उनका कुछ डेटा सेंटर से कुछ सर्विसेज है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सर्विस यूज करनी है, जितना आप यूज कर रहे हो उतने टाइम के लिए सिर्फ आप पे करते हो। एंड इसका कैसे काम चलता है, ओवर द इंटरनेट, क्योंकि उनके डेटा सेंटर्स कहीं पे बने हैं, इट इज कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। हमारा एक अकाउंट बनता है, वहां से हम कनेक्ट हो जाते हैं, वहां से हमारी रिक्वेस्ट सेंड होती है, वी यूज इट एंड वी रिलीज इट, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट एटलीस्ट, ठीक है। आपको सर्वर्स पता है, सर्वर्स हैव यू हर्ड एनी टाइम सर्वर्स, ठीक है। सर्वर्स मतलब कोई ऐसे पीसीस और लैपटॉप्स यू कैन से जिनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। हु हैज द हायर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अभी जो हमारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं गाइस, वो हमें कहीं पे तो भी रखने पड़ते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू, वी आर डिप्लॉइंग इट, मतलब हम वो सॉफ्टवेयर्स जो हमारे बनते हैं हम कहीं पे तो भी रखते हैं। सो जिस पे हम रखते हैं इट इज कॉल्ड एज द सर्विस, और वहां से हम डिफरेंट जो हमारे यूजर्स है, क्लाइंट्स है, उनको यूज करने के लिए देते हैं। तो जो सर्वर्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है और उसको मेंटेनेंस लगता है, वो सर्वर्स कभी बंद नहीं पड़ सकते। अगर सर्वर बंद पड़ गया तो आपका एप्लीकेशन भी बंद पड़ जाएगा। सो सर्वर्स दे हैव द हायर कॉन्फ़िगरेशन, उनका एक एनवायरनमेंट हमें हमेशा क्रिएट करके रखना पड़ता है, उनकी हीट हमेशा जनरेट होती है, तो हमें कूलिंग सिस्टम लगता है। सो दोज वर द फिजिकल सर्वर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अभी भी कुछ कंपनीज है, से यू कैन से 10 to 12% ऑफ द कंपनीज those who have the physical servers, मतलब in actual जिसे हम छू सकते हैं, हम जिसे देख सकते हैं, those are the physical servers, ठीक है। और virtual servers क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है, we can't touch it but they are there, ठीक है, it is there। जैसे AWS में जो instances है जिसे हम we can't touch it, जो हम पीसी बनाएंगे, मतलब AWS क्लाउड पे अभी मैं आपको एक डेमो बताऊंगी, जैसे उस पे मैं एक पीसी बनाऊंगी, लैपटॉप बनाऊंगी, बट उसका कोई आप उसे टच नहीं कर सकते हो, बस आप देख सकते हो कि ठीक है मेरा इंस्टेंस बना है, और उसमें हम रिएक्ट कैसे करते हैं, CLI थ्रू, कमांड्स थ्रू उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ये डिफरेंस होता है। फिजिकल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, वर्चुअल मतलब जो वहां पे सिर्फ बना है, लॉजिकल है, विच वी कैन सी ऑन द कंसोल इटसेल्फ, ठीक है, कि यहाँ पे इंस्टेंस बना है, यहाँ पे पीसी बना है मेरे कंसोल पे। सो दैट इज द वर्चुअल वन। ऑन द AWS क्लाउड हमारे वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल जिसे हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली टच नहीं कर पाते हैं, बट वी कैन फील इट, बट वी कैन सी इट, ठीक है, लॉजिकली वहां पे बने हैं। एग्जाम्पल बता सकती हूँ उसका, One second. I उसका मैं have आपको one. यस। What is the physical server? Like any name, example? टॉमकैट सर्वर सुना आपने, Mm, वेब सर्वर। Can you repeat again? I don't catch a bit. Have you list? Okay, just let me know what's your name first. My name is Jignesh. Yeah. Have you heard about the Tomcat server, Jignesh? No, I have not heard. Okay. So what happening now? For any server, you can say for the Facebook, you can take the example. They have their own servers. Okay. मतलब उनके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के फिजिकल सर्वर्स तो उनके है नहीं, दे हैव द वर्चुअल सर्वर्स ओनली। बट आई कैन टेक यू board exam result, you know, the 10th result or the 12th result, we got it correct. So Yes. they have created their own servers, उन्होंने खुद के सर्वर्स खरीदे हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। जैसे मेमोरी, यू नो, लाइक हार्ड डिस्क होता है, Yes. हम हमारे मोबाइल के भी कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, करेक्ट। मोबाइल या फिर लैपटॉप आपको खरीदना है तो वी चेक द कॉन्फ़िगरेशन, उसका रैम कितना है, रोम कितना है। सो इट इज सिमिलर टू दैट, सिमिलर ही होते हैं, बट उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि उनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
Okay. तो अकॉर्डिंग Okay. टू द योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपका लोड कितना है, जैसे सीनियर आर्किटेक्ट से डिसाइड करेंगे कि मेरे जो सर्वर्स है उसकी कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इट विल बी डिजाइन बाय द सीनियर आर्किटेक्ट्स। अकॉर्डिंगली हम वो सर्वर्स हमारे डिजाइन करते हैं। तो पहले क्या होता था, सो आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, द ट्रेडिशनल वन जो पहले चल रहा था, ठीक है। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्वर ओनली। नॉर्मल कंप्यूटर या डिवाइस जो होते हैं बट जिनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज द सर्वर्स। डेटा सेंटर्स मतलब आपको आईडब्ल्यूएस में आएगा, डेटा सेंटर जो बनाए हुए थे ऑफिसेस, डेटा सेंटर्स में हमारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ये तो हम बहुत बार बोलते हैं कि ठीक है सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। सर्वर मतलब जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रखा जाता है, ठीक है। सिमिलर टू पीसी ही होता है बट उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई होता है। इट इज सफिशिएंट राइट नाउ फॉर यू। बट व्हाट यू मस्ट बी इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि ठीक है दिस इज द थिंग राइट नाउ, ठीक है। मार्केट में अभी क्या है, तो मोस्ट ऑफ द सर्वर्स 80 to 90% सर्वर्स आर द वर्चुअल। वर्चुअल है मतलब वो क्लाउड पे होगा, आइदर उनका खुद का क्लाउड होगा या फिर वो एडब्ल्यूएस, अजूर, जीसीपी, आईबीएम, इनमें से कोई भी क्लाउड सर्विसेज पे उनका वर्चुअल सर्वर होस्ट होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि ठीक है कोई एप्लीकेशन है तो हमारा सर्वर कहाँ पे है, वेयर इज आवर सर्वर। योर क्वेश्चन शुड बी वेयर इज आवर सर्वर। सो आइदर इट विल बी ऑन देयर ओन क्लाउड, ठीक है। ओन क्लाउड मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके खुद के क्लाउड्स होते हैं प्राइवेट, या फिर अदरवाइज अगर दूसरे सेक्टर्स के हैं, ई कॉमर्स हो गया, तो उन लोगों के सर्वर्स जो होते हैं वो आइदर विल बी, इट विल बी ऑन द एडब्ल्यूएस, जीसीपी और द अजूर क्लाउड। क्लाउड है मतलब वर्चुअल सर्वर से, ठीक है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल, मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी कि अभी हमारा जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसमें कैसे होता था, ठीक है। ट्रेडिशनल जो सर्वर्स चल रहे थे उसमें क्या इशू था, मतलब अब तक क्लाउड आने के पहले व्हाट वाज द सिचुएशन, ठीक है। गाइस डेवलपर्स तब भी थे, पहले भी डेवलपर्स थे। डेवलपर्स है मतलब डेवलपर्स कौन से होते हैं, कैन एनीवन टेल मी? फ्रंट एंड डेवलपर्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, Flutter. या फिर वो टेस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर्स मतलब क्या था गाइस, किसी भी एप्लीकेशन का आप ले लो, यू कैन टेक द एप्लीकेशन ऑफ फेसबुक, क्योंकि हम यूज करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि समझने में इजी जाएगा। जो कुछ भी आपको दिखता है, वॉट एवर यू सी, ठीक है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है। जो कुछ भी आप देखते हो आपकी आंखों से, जो आपको दिखता है कोई भी एप्लीकेशन का, दैट इज द फ्रंट एंड। फ्रंट मतलब जो दिखता है, फ्रंट में है। वॉट एवर यू सी इट बाई योर आईज, जिसके साथ इंटरेक्ट करते हो, दैट इज नथिंग बट द फ्रंट एंड। मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करती हूँ, मुझे सबसे पहले आता है साइन अप पेज, करेक्ट। मुझे आपको कुछ अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां पे ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो। सो वॉट एवर यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ, दैट इज आल्सो द फ्रंट एंड। आपने आपका खुद का अकाउंट बनाया एंड द सेकेंड टाइम आपको कुछ दूसरी स्क्रीन आती है, ठीक है, साइन अप, लॉग इन, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट, साइन अप अलग होता है, लॉग इन डिफरेंट होता है। फिर सेकेंड टाइम आपको लॉग इन आएगा, वहां पे आपको डालना पड़ता है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। ये सेकेंड स्क्रीन, ये फर्स्ट स्क्रीन। फिर अंदर जाने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका डीपी डालना है, यहाँ पे कवर पेज आएगा, यहाँ पे कुछ वॉल आएगी। सो दिस इज द थर्ड स्क्रीन, करेक्ट। सो दीज आर द स्क्रीन्स एंड दिस इज योर फ्रंट एंड इन दैट केस, ठीक है। इसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, जैसे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला एंड देन क्लिक, लॉग इन पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद उसके पीछे जो लॉजिक होता है, वॉट एवर रनिंग इन द बैकग्राउंड, दैट इज कॉल्ड एज द बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो बट उसके पीछे ऑलरेडी कुछ लॉजिक चल रहा होता है। आपको कहीं तो कभी रीडायरेक्ट करेगा, आपका डेटा कहीं से तो भी फेच करके लाएगा,
कहीं पे आपकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। सो उसके पीछे जो भी लॉजिक चलता है दैट इज नथिंग बट द बैक एंड। सो दिस इज द फ्रंट एंड, जो लॉजिक एक्चुअल लिखा जाता है दैट इज द बैक एंड। फुल स्टैक मतलब जिससे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है दैट इज द फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। और टेस्टर्स मतलब जो कोई भी ये पूरा एप्लीकेशन जो बना है उसको टेस्ट करने के लिए लगेंगे टेस्टर्स, ठीक है। सो फ्रंट एंड डेवलपर्स हो, बैक एंड डेवलपर्स हो या फिर टेस्टर्स हो, ये लोग अपना खुद का कोड लिखेंगे, ठीक है। टेस्टर कौन सा है? ऑटोमेशन टेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो दे विल राइट देयर कोड। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS होता है, बैक एंड के लिए पाइथन जावा, यू कैन टेक इट, ठीक है। टेस्टर्स के भी डिफरेंट लैंग्वेजेस टूल्स होते हैं, सिलेनियम, साइप्रेस वगैरह जो टूल्स होते हैं। सो सिंपली राइट नाउ एट दिस पॉइंट यू शुड नो दैट कि हमें कुछ कोड लिखा गया इन लोगों की तरफ से, ठीक है। पहले भी ये कोड लिखा जाता था और ये कोड टेस्ट होने के बाद, पूरे प्रोसेस होने के बाद दे विल पुट इट समवेयर, ठीक है। दे विल पुट इट समवेयर, कहाँ पे? ये होते थे सर्वर्स, ठीक है। दोज वेयर द सर्वर्स, बट ये थे फिजिकल सर्वर्स, ठीक है। फिजिकल सर्वर से मतलब गाइस प्रोसीजर क्या होती थी? सीनियर आर्किटेक्ट्स वो गेस कर पाते थे कि ठीक है मुझे ना ऐसा चाहिए मेरा सर्वर जो 1000 रिक्वेस्ट हैंडल कर पाए, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन का मुझे सर्वर चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होती है कंपनीज में कि इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, देन इट विल गो टू द योर मैनेजर, मैनेजर से आपके पास CEO के पास जाएगा, डिफरेंट फेजेस से जाएगा और फिर वो सैंक्शन होने के बाद वो आपके परचेस के लिए आपके डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। देन दे विल परचेस इट, ऑर्डर दिया जाएगा क्योंकि ये रेडी नहीं होते सर्वर्स ऑटो, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा होता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दे विल जस्ट डिजाइन इट और ऑर्डर देंगे और फिर उसके 15-20 दिनों बाद आपका सर्वर आ जाएगा आपके कंपनी में, ठीक है। दे विल इंस्टॉल इट, सर्वर आ गया, ठीक है। उन्होंने एक प्रॉपर सर्वर कहीं पे रखना है, मतलब उसके लिए एक रूम मेंटेन करो, सर्वर कहीं पे भी नहीं रख सकते, ठीक है। माइंड इट, सर्वर्स के लिए प्रॉपर कूलिंग सिस्टम लगता है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, अगर वो हीट प्रॉपरली डेसिपेट नहीं हो पा रही है तो सर्वर बर्न आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर एक कूलिंग सिस्टम लगेगा जो इसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा, यहाँ पे गार्ड लगेंगे, ये सिस्टम है। मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा कि सर्वर डाउन तो नहीं जा रहा है, प्रॉपरली उसका काम तो चल रहा है, मुझे इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगेगा, ठीक है। मुझे उसका पावर आउटेज नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्वर के लिए अगर पावर नहीं मिल रहा है तो वो डाउन जाएगा। सो आई हैव टू मेंटेन द पावर ऑल्सो, ठीक है। 24/7 मॉनिटरिंग, पावर जाननी हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें मुझे करने के बाद यहाँ पे सर्वर मेरा आ गया, मैंने उस पे मुझे कुछ जो सॉफ्टवेयर चाहिए मैंने इंस्टॉल कर दिए, मतलब सर्वर को चलाने के लिए भी उसके खुद के कुछ टूल्स होंगे, करेक्ट, वो मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे दूसरा इंजीनियर बुलवाना पड़ता है, इंस्टॉलेशन इंजीनियर, जो इसे प्रॉपर इंस्टॉल करके देगा। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम मैंने इंस्टॉल कर दिया मतलब हो गया, आफ्टर अ पीरियोडिक टाइम जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर चल रहे हैं उसके अपग्रेडेशंस भी आते हैं, ठीक है। सो मुझे अपग्रेड्स करने पड़ेंगे मेरी तरफ से खुद। सो ये सब चीजें मुझे करनी पड़ती थी पहले। ये जो कोड है कहीं पे तो भी मैंने डिप्लॉय किया, सर्वर पे डाला। सर्वर मेंटेन करने के लिए पहले तो मुझे मेरी चीज थी कि मुझे 1000 रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट थी। बट बाय चांस जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर हो गया, 1000 ने अभी मुझे 1 लाख रिक्वेस्ट आने लगी है, ठीक है। 1000 की जगह पे 1 लाख आ गए। बट गाइस अभी पहले क्या हुआ था, हमारी रिक्वेस्ट मतलब हमारा जो सिस्टम जो हमने डिजाइन किया था वो 1000 रिक्वेस्ट के लिए किया था, ठीक है। वो 1000 रिक्वेस्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। बट नाउ अभी हमारा एप्लीकेशन बहुत अच्छे से चल गया और हमारी रिक्वेस्ट रीच आउट हुई तो 1 लाख। अभी क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? अगेन यू हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग, ठीक है। आपको फिर से आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, यार अभी रिक्वेस्ट तो बढ़ गई है, अभी फिर से हमें अपग्रेड करना पड़ेगा सर्वर, उसको डॉक्यूमेंट बनाओ, आपको उसको फिर से CEO का सैंक्शन लो, उसके बाद उसको ऑर्डर करो आपके वेंडर के पास, फिर वो ऑर्डर करेगा, वो
नया वाला फिर से सर्वर आएगा, उसे इंस्टॉल करो, तब तक ये डाउन टाइम जाएगा वो अलग से, ठीक है। सो दिस वाज द प्रोसीजर, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा, ठीक है, बीच में कुछ ऐसा कौन सी ड्यूरेशन था कि 1 लाख था, उसके बाद वो डाउनग्रेड करके हो गया सपोज 50,000। हाल है? अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने हमारा हालांकि सिस्टम डिजाइन किया था আমি 1 लाख বাংলায় रिक्वेस्ट। আমি নকলা गाइस সেন্টার प्लीज আছে प्लीज বাট তুমি একখান তো प्लीज म्यूट সোমবার योरसेल्फ। ফ্রাইডে सो नाउ अभी सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या हुई गाइस, कि पहले हमने बोला कि 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही थी, बट समहाउ नाउ इट इज डाउनग्रेडेड टू 50,000। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमारा 1 लाख के लिए हमने हमारा सिस्टम डिजाइन किया था वो तो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि वो फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा है। सो इन दिस केस अभी हमारा जो जो सर्वर हमने डिजाइन किया था 1 लाख रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, वो ठीक से ऑक्यूपाई, मतलब हम पूरा उसका मैक्सिमाइज यूज नहीं कर पा रहे, तो वो वेस्ट जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। सो दिस वाज द इशू, ठीक है। हम पहले से ठीक से नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, अगर मेरे रिक्वेस्ट ठीक से कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से मैं मेरा फिजिकल सर्वर मेरा ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रही थी। सो दैट वाज द मेन इशू, मेंटेनेंस, पावर, मॉनिटरिंग सिस्टम, एवरीथिंग एवरीथिंग इट वाज गोइंग हेक्टिक जॉब। ये पहले सब चल रहा था, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स थी मैनेजमेंट करने के लिए। सो देन द कम्स क्लाउड, ठीक है, फिर उसके बाद आया क्लाउड, और फिर पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मेरा सर्वर है, ठीक है, क्लाउड आने के बाद क्या कर रही हूं मैं, ठीक है, मैं बना रही हूँ वर्चुअल मशीन। इन केस ऑफ एडब्ल्यूएस इसे कहते हैं EC2 इंस्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस नाउ, क्लाउड आने के बाद सिंपल, जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट के लिए मैंने AWS कंसोल, मतलब उनकी कोई वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट के लिए मैंने उनका एक अकाउंट बनाया, ठीक है, उनके लिए एक अकाउंट बनाया। अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कुछ डिटेल्स डालते हैं, आपके कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती है, सिंपल। ये काम होता है हाफ एन आवर का, मेरा अकाउंट बन गया। अभी अकाउंट बनने के बाद अभी मैं कह रही हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर मुझे डिप्लॉय करना है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू AWS कि मुझे फिलहाल 1000 रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए एक VM बना के दो, मतलब VM बनाना है। सो वी विल जस्ट क्रिएट वन VM विच विल हैंडल द 1000 रिक्वेस्ट। और कितना टाइम लगेगा गाइस, कैन यू बिलीव मी, जस्ट 10 मिनट्स मैक्स, ठीक है। आप कुछ टैब सिलेक्ट करते हो, टैब पे क्लिक करते हो, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आप वहां पे टिक करते हो, क्लिक करते हो और क्रिएट कर देते हो। सो विद इन द 10 मिनट्स आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया, जो आपको सर्वर चाहिए था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज मेरी यहाँ पे सॉल्व हुई, मेरा टाइम बच रहा है, जो मुझे पूरा साइकिल से जाना पड़ता था वो मेरा टाइम बच गया। मुझे फिजिकल सर्वर खरीद के मुझे उसमें मेरा पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इट, ठीक है, मुझे पूरा, सपोज वो एक सर्वर मुझे खरीदने के लिए 3 to 4 lakhs लगते हैं। सो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच अमाउंट हियर, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए यूज करूंगी, जितने ड्यूरेशन के लिए मैं सिर्फ उनका रेंट दूंगी, मेरा काम हो गया तो मैं उसे रिलीज कर दूंगी, दैट्स इट, ठीक है। अभी ये मेरी पहली चीज होगी कि मेरे 10 मिनट में मैंने VM बना दिया। सेकंड चीज, जैसे मुझे कोई जगह, एक रूम उसके लिए ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि AWS खुद उसके कंसोल पे बना रहा है, मुझे उसका कूलिंग पावर सिस्टम देखने की जरूरत नहीं, AWS इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, AWS टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका सर्वर कभी डाउन नहीं जाएगा। कुछ SOPs होते हैं बैकग्राउंड में, अगर मेरा VM कुछ सेकंड्स के लिए भी डाउन जाता है तो AWS हैज टू पे टू मी, ठीक है, वो लैक्स में होता है अमाउंट। अगर एक सेकंड के लिए भी अगर ये वर्चुअल मशीन डाउन हुआ तो AWS विल पे टू मी। इतना उनका कॉन्फिडेंस है कि ये कभी डाउन नहीं जाएगा।
सो इसलिए मेरा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि ये 24/7 वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मुझे पावर का मुझे जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी ऑपरेट कर सकती हूँ, आइदर आई एम इन द इंडिया और इन द यूएस। कोई भी क्लाइंट अगर इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, ऑपरेट करना चाहता है, तो इस वीएम पे वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। तो मेरा वो भी इश्यू सॉर्ट आउट हो गया। ना मुझे कूलिंग सिस्टम मेरी मेंटेन करने की जरूरत है, ना मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ना मुझे उसके लिए प्रॉपर एक रूम हायर करना है, मुझे वो भी नहीं करना है। एवरीथिंग इज टेकिंग केयर बाय द AWS. So that was the game changing. Suppose to buy that one server मेरे अगर ये इतना इन्वेस्ट हो पा रहे थे, आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जांपल, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट मंथली रेंट आउट अभी AWS को दूंगी जितना मैंने यूज किया है, और ये जो अमाउंट है गाइस रिमेनिंग, नाउ दैट आई कैन इन्वेस्ट इट इनटू द अदर टास्क। मतलब मैं अच्छे डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर जो क्वालिफाइड है, मैं उनमें इन्वेस्ट कर पा रही थी। So that was the big benefit. Because of that, जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी आई, इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम में आ गई। भी है सिर्फ 5 to 6 पीपल, वो भी खुद का सॉफ्टवेयर बना पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए जो अमाउंट था वो अभी उनको सर्वर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नाउ दे हैव क्लाउड, क्लाउड के अंदर वो खुद के सर्वर्स बना पा रहे थे, और वो जो अमाउंट है दे नाउ दे कैन इन्वेस्ट इनटू द डेवलपर्स, अदर टास्क में वो इन्वेस्ट कर पा रहे थे। So that was the game changing. Because of that, cloud technology only software industry इंडिया में या फिर कहीं पे भी बूम में आ गई। ठीक है, so we will come to the PPT again. So I have shown that is the thing only in the here. प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल में क्या थे, जैसे कॉस्ट ऑफ फिजिकल सर्विस असेट्स का बहुत ज्यादा था, मुझे पावर रिक्वायरमेंट, कूलिंग, मेंटेनेंस, मैन पावर, मॉनिटरिंग सिस्टम मुझे रेंट आउट करना पड़ता था। ठीक है, स्केलिंग में इश्यू आ जाता, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट का एक एग्जांपल दिया, 1000 रिक्वेस्ट, अगर वो स्केल अप हो गया तो क्या प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, ये हमने एनालॉजी देखी। एंड द लास्ट वन इज द, ये टॉपिक है डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्लाउड कंसेप्ट दैट इज क्लियर। बिफोर एंड आफ्टर क्या था वो हमने देखा, क्लाउड के पहले कैसे काम चलता था, क्लाउड के बाद क्या हुआ, क्यों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना बूम में आ गई, वो अभी रीजन आई होप अभी आपको पता चल गया हो। नाउ सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है तो उसके प्रॉपर साइकिल होती है। ये आपका इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए, जैसे सुमित ने दिया होगा, या फिर जो भी फ्रेशर्स देते हैं स्टार्टिंग के फेज में, उनको क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू अवेयर ऑफ द SDLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको पता है क्या, तो आपको पता होनी चाहिए। तो दैट इज द अगेन वन क्वेश्चन विच विल बी प्रिपेयर्ड इन दिस सेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर साइकिल होती है, उनकी फेजेस होती है। ठीक है, I will take the example of say the Facebook only. So client मतलब कौन होता है, उनके दिमाग में कुछ आइडियाज होती है कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, जो उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई एप्लीकेशन मुझे चाहिए। से जुकेनबर्ग हैज सम आइडिया कि मुझे, उसे नहीं पता था कि फेसबुक कैसे होगा, बट उसके दिमाग में एक आइडिया थी कि मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हर एक का प्रोफाइल होगा। ठीक है, और उसके उसका खुद का एक पिक्चर वहां पे कहीं पे तो भी डिस्प्ले कर सके, उसके प्रोफाइल से वो किसी के साथ कनेक्ट हो सके, वो किसी और के रिक्वेस्ट वहां पे एक्सेप्ट कर सके कि उसे चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, वहां पे वो खुद के कुछ फोटोज मीडिया डाल सके उसके प्रोफाइल पे, ये ऐसा कुछ आइडिया उसके दिमाग में था। सो व्हाट हैपेंड, यू कैन टेक द एग्जांपल, वो जुकेनबर्ग आया हमारे ATS के पास और उसने बोला कि देखो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आइडिया है, मुझे ऐसा एक एप्लीकेशन डेवलप करके दो, ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप करके चाहिए। ठीक है, सो हमारी कंपनी का जो BA है, बिजनेस एनालिस्ट, ही विल इंटरैक्ट विद द जुकेनबर्ग्स कि हाँ तुम्हारी जो आइडिया है, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, जस्ट टेल मी। वो कंटिन्यूसली कुछ मीटिंग्स, कुछ सेशंस होते हैं उनके साथ, उसका पूरा रिक्वायरमेंट नोटेड डाउन, पूरा हर वर्ड टू वर्ड नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, देन ठीक है, हमने प्लानिंग किया कि ठीक है, जो पूरी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरे किया है, उसके साथ प्लानिंग किया, उसके बाद पूरे रिक्वायरमेंट्स हमने नोट डाउन कर ली BA के हिसाब से। BA ने पूरा नोट डाउन करने के बाद देन ही केम्स टू आवर कंपनी
जो हमारे सीनियर होते हैं डेवलपर्स आर्किटेक्ट्स, उनके साथ उनके मीटिंग्स होते हैं और फिर रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की जाती है टेक्निकली। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल था उसे टेक्निकली उसे पूरा रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन की जाती है। फिर उसका डिजाइनिंग होता है। मतलब अभी ठीक है, फेसबुक हमें बनाना है तो उसके लिए फ्रंट एंड में क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड में क्या यूज करेंगे, डेटाबेस के लिए क्या यूज करेंगे, ये पूरा डिफाइन किया जाता है सीनियर आर्किटेक्ट की तरफ से। दैट इज द डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कम्स एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट एट द फोर्थ स्टेज, दैट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली डिजाइनिंग में HLD और LLD होता है, हाई लेवल डिजाइनिंग, लो लेवल डिजाइनिंग। टेक्नोलॉजी डिसाइड की जाती है, एक हाई लेवल स्ट्रक्चर बनाया जाता है एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर्स उनका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, बैक एंड डेवलपर्स उनका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोड लिखेंगे, कोड लिख के सपोज हो गया है तो उसका फिर होता है टेस्टिंग। कोड लिखने के बाद उसका टेस्टिंग होना इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग टीम जब ग्रीन सिग्नल देती है कि ठीक है जो कोड भी लिखा है वो अच्छे से प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो दे विल क्रिएट द बग्स एरर्स, दे विल असाइन टू द डेवलपर्स, डेवलपर्स उनको फिर से सॉल्व करना है, फिर से टेस्टिंग को जाएगा। जब तक ये पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। कोड यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली टेस्ट कर दिया, अच्छे से वर्क कर रहा है, देन इट विल गो टू द डिप्लॉयमेंट फेज। ठीक है, फिर हम उसे कहीं पे डिप्लॉयमेंट मतलब हम उसे कहीं तो भी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से क्लाइंट एक्सेस कर सके, यूजर्स एक्सेस कर सके। सो उसका डिप्लॉयमेंट हो गया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, फेसबुक या फिर कोई भी एप्लीकेशन का ले लो, ऐसे हुआ है क्या कि सिर्फ आप व्हाट्सएप का ही ले लो, उनके कितने अपडेट्स आते हैं। सो अपडेट इज नथिंग बट द मेंटेनेंस। कहीं पे कुछ इश्यू आता है, अपडेट्स आ गए, उसको भी डिप्लॉय करते जाओ, उसका मेंटेनेंस करो। कहीं पे तो भी इन केस कुछ इश्यूज आते हैं वो तो हमें सॉल्व करने होते हैं, उसके SOP साइन होते हैं कि हम मेंटेनेंस कितने सालों तक देंगे, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, जो भी हमने डिसाइड किया है, तो हमें मेंटेनेंस भी उनको देना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द software development life cycle. Agar if someone asks you what is the SDLC, what are the phases in that, you should be able to say that planning, requirements, designing, prototyping, software development, testing, deployment and operation and maintenance. ठीक है गाइस, हमेशा कोई भी चीज याद रखने का बेस्ट तरीका है कि उसको किसी के साथ रिलेट करो। जैसे आप फेसबुक का कोई एग्जांपल मैंने जो बताया वो आप ले सकते हो कि उसका प्लानिंग हुआ, फिर उसके रिक्वायरमेंट्स हमने नोट डाउन की, उसका डिजाइनिंग किया गया कि फ्रंट एंड में क्या होगा, बैक एंड में क्या होगा, डेटाबेस क्या होगा। ठीक है, और कोई लेयर हमें ऐड करनी है क्या, वो डिजाइनिंग हो गया। फिर एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, देन उसका टेस्टिंग होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, लास्ट में उसका ऑपरेशन होता है। तो दिस इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड कि एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय किए जाते थे बिफोर। सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, बिजनेस आइडिया थी, फिजिकल सर्वर्स बाय करने पड़ते थे, डेटा सेंटर्स हमें सेटअप करना पड़ता था, उसके ऊपर पूरे सॉफ्टवेयर डेवलप करो, फिर उस पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करो और उसे मेंटेन करो। ये पहले सब चलता था और अभी ये उसके फेजेस मैंने सिर्फ एक डायग्राम में दिखाई है, जस्ट फ्लो बताया है, दैट्स इट। एंड देन आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ, एवरीथिंग इज टेकिंग केयर बाय द AWS। सिंपल हमें क्लिक करना था और हमें एट द लास्ट हमें हमारा मतलब जो भी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग वी आर वेस्टिंग ऑन द अदर थिंग्स, जो कि हमें हमारे डेवलप करते टाइम उस पे खर्च करना चाहिए। मनी हो, मैन पावर हो, एवरीथिंग। हम जितना ज्यादा डेवलपिंग पे उतने हम इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर होगा। सो पहले क्या होता था, हम बाकी चीजों में ही हमारा एनर्जी वेस्ट होता था, बट नाउ everything is taken care of by the AWS and now we are just focusing on the developing। हम उस पे हमारी एनर्जी, हमारा पैसा खर्च करने लगे, दैट्स वाई हमारा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी आने लगा। सो दैट वाज द मेन रीजन। या सो दिस वाज द लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्लाउड। क्या कर रहे थे हम, बिजनेस आइडिया है, ठीक है, हम AWS के लिए उसका अकाउंट बनाएंगे,
वहां पे हम हमारे जो भी सर्विसेज रिसोर्सेस है वो हम यूज करेंगे और हम उसको एक्सेस कर सकते थे। दैट्स इट, इतना सिंपल हो गया। ठीक है, क्या क्या रीजन है क्लाउड कंप्यूटिंग इतना डिमांड में क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज, आप जितना यूज कर रहे हो सिर्फ उतने के लिए ही पे कर रहे हो। ठीक है, आप जो चाहिए वो प्रिफर कर सकते हो। इट इज वेरी इंस्टेंट, ग्लोबल है, इंटरनेट पे चलता है, इसलिए आपको ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको फिजिकली मतलब उस प्लेस पे जाओ, जैसे पुणे में जाना है वहां जाके ही आप सर्वर पे काम कर सकते हो। नो, योर सर्वर्स, आई एम जस्ट टेकिंग द वन एग्जांपल सर्वर्स का, ये यूनिवर्सल है, मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो एंड वन क्लिक अवे है। ठीक है, जो पॉपुलर सर्विसेज जो ऑलरेडी यूज कर रही है क्लाउड, इट इज द जीमेल, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, इन द बैकग्राउंड दे आर यूजिंग द क्लाउड। ठीक है, इफ आई कंपेयर AWS, Azure एंड GCP, ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियली इटसेल्फ, सबसे ज्यादा मार्केट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो AWS ने किया है, दैट इज द 31%, और रेवेन्यू भी उनका सबसे ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई अगर आप AWS अच्छे से सीखते हो एंड इफ समवन वांट्स टू रिप्लिकेट अगेन, क्योंकि अभी ये भी चल रहा है कि मल्टी क्लाउड हो तो अच्छा है, तो AWS एक बार सीख लो, बाद में Azure एंड GCP यू कैन रिप्लिकेट, आप कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज हो गए। सो दैट इज द मेन रीजन यू कैन सी कि Amazon AWS ने सबसे ज्यादा मार्केट ऑक्यूपाई किया है एंड दे आर इन द प्रॉफिट, दैट्स व्हाई वी हैव चूजन द AWS। ठीक है, नाउ जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट है कि क्लाउड कौन से टाइप के होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, पब्लिक मतलब जो ओपन है, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम यू कैन से, ई कॉमर्स, उनके लिए हम यूज करते हैं। बट द प्राइवेट क्लाउड मीन्स जिनको एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होता है, लाइक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट जो होते हैं या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जैसे बैंक्स एप्लीकेशंस वगैरह जो होते हैं, उनके खुद के प्राउड क्लाउड होते हैं, दैट इज द प्राइवेट क्लाउड। तो वो उनके जो सेंसिटिव जो डेटा होता है वो खुद के क्लाउड पे रखते हैं, प्राइवेट क्लाउड पे, और जो सर्विसेज जहाँ पे सेंसिटिव डेटा नहीं है वो कुछ रखते हैं पब्लिक क्लाउड पे, जैसे AWS, GCP या फिर इस पे, एंड उसको कहते हैं हाइब्रिड वन, जो पब्लिक और प्राइवेट का दोनों का मिक्स होता है, दैट इज द हाइब्रिड क्लाउड। ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज। एक्चुअली आप AWS कंसोल पे अगर जाते हो तो ये कैटेगरीज होती है, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, ऑलमोस्ट 100 प्लस कुछ तो भी है, बट वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है, जो हमें यूज में आएंगी वो हम देखेंगे। नाउ ये सब करने के बाद what will be the career opportunities, so these are listed over here। आप एक काम कर सकते हो, आज ये सेशन होने के बाद जस्ट कोई भी जॉब पोर्टल पे जाओ और सर्च करो AWS या फिर DevOps के लिए कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, सो यू विल कम टू नो कि एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल, इन तीनों लेवल पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगी। ठीक है, एंड इन द लास्ट आई कैन से दिस इज द फ्यूचर। एटलीस्ट आपको 8 से 10 साल इसको मतलब कुछ इशू नहीं आएगा वंस यू आर इन क्लाउड, तब तक तो भी एटलीस्ट उसको ओवरलैप करने के लिए अब तो कुछ आया नहीं है। वंस यू आर इन 8 से 10 साल आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इसमें, और दीज आर द हाई पेइंग जॉब्स। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ डाउट है तो गाइस पूछो। Hello, ma'am. I have one question. Let me just stop sharing, okay? Yeah, so that I can see who is talking. Just a second. Yeah. Hello. Yes, please speak. Next, this course is eligible for all background because I Yes, belong to Telegram. definitely. Yes, Jignesh, because see, we are taking everything from the scratch, okay? I know. I mean, most of the things, they are new to telecom, but we have designed our syllabus that it will be even make the eligible the guy from the BA hello? background also. Yes? Yeah. How much the part of coding? How much we have to do coding like that, or this is See, not without coding? To be frank, no, there Okay. is no need of any coding. But I will teach you some scripts, like say Yeah. 2 scripts or 3 scripts. They will ask you for the proficient who want to convert their experience to into the DevOps.
ठीक है, आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस टेलीकॉम का है, so if you say you have worked on the DevOps field also and you want to convert in that case, so उनके लिए मैं कुछ 2-3 स्क्रिप्ट बताऊंगी शेल स्क्रिप्ट में, जो आपको बता दे कि ठीक है मैंने ये इतनी शेल स्क्रिप्ट कर रखी है, दैट्स इट, इट विल बी सफिशिएंट। दे विल आस्क यू कि आपने कुछ स्क्रिप्ट पे काम किया है क्या, तो यू कैन से यस मैंने शेल स्क्रिप्ट से कुछ ऑटोमेशन किए हैं, ये 2 टास्क है, ये मैंने किए, सो इट विल बी सफिशिएंट। बट एज ऑफ कोडिंग आपको कुछ भी कोडिंग नहीं लगेगा। Ma'am, I have one question. Is this based on script? Then in this industry, AI is affected on that industry? No, Artificial not intelligence. now. Right now there is nothing AI has entered in the cloud as of now. Because AI is everywhere. Yes, So we it is are safe. We are the still only safe. Yes, we are the only safe, because otherwise for the developers AI has entered, but in the cloud there is no AI right now. in future any chances to Because affect? no, till now they see what is the DevOps thing I'm telling you. You will there will not be any repeated task, ठीक है, कोई रिपीट टास्क नहीं होता है, जैसे डेवलपर में आपको रिपीट टास्क होता है, वही कोड होता है, लॉगिन पेज ये पेज वही होता है, बट हमारे डेवऑप्स के केस में हम मैनुअल चीजें कर, मैनुअल इन द सेंस कि जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि कोई टूल है जैसे जेनकिंस, वो आपको इंटीग्रेट करना होता है, आपके सिस्टम में इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स कौन सी है, वो आपको पीओसी करना है और वो आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये चीज कोई भी एआई इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है कि ठीक है कहीं पे तो भी फेल हो रहा है तो आपको ट्रबल शूट करना है, यस, बट द थिंग इज आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं ट्रबल शूट कर सकता हूँ, कहीं पे कुछ एरर आ रहा है तो कैसे मैं उसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, ये आपका माइंडसेट होना जरूरी है, ठीक है। एडब्ल्यूएस या फिर डेवऑप्स फील्ड में आपको एरर ढूंढते आना चाहिए, ठीक है, सिक्वेंशियली कैसे काम करता है, और टिल दैट स्टिल ये एरर आ रहा है मतलब मुझे कुछ उस तरीके के जाके आपको ढूंढना है, ये माइंडसेट जरूरी है। अगर वो माइंडसेट है तो यू आर गुड टू गो। ये माइंडसेट तो एआई में अब तक नहीं आया है, ठीक है, ट्रबल शूट करना ये एआई में अब तक आया नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेफ। Okay, and your academy is provide a placement. व्हाट? I have asked questions. Your if I have joined your course and your academy is provide any placement regarding to job opportunity. Placement we will not provide, but we will give you the support, whatever opportunities they are, you have to crack it by yourself. See, we can't guarantee you that you will get the job, to be frank, in fact no one can do that at this stage. You have to crack it by yourself, but we will give you the opportunities whatever available. We have our team, we will share the opportunities available, you have to apply and you have to give the interviews. And can I ask you in this course, fees? Yes. Can I ask you? ma'am, in this openly? course we are going to do any project, 1, 2, Yes. 3 project like that? Yes. Okay. At the end we will going to do the projects also. Okay. In this project is also considered in an overseas country or in Indian country. What? If companies Sorry? provide any project, hello, Jignesh, Yes. if companies provide any project like any kind of project, some, and is this project in Indian company or in overseas MNC company? It will be the MNC only. See, project that we are going to do, it is for your practice so that confidently you can say that I have worked on the project. For that sake only. In the interview, they will not ask you that which project are this. The project are for the purpose that you have hands-on. ठीक है, आपने ये project खुद implement किए हैं. It is for that purpose. What is the purchase cost of this academy or for devs? You are asking about the course? Yes. Brijesh ji will talk about it, okay? Okay, sure. Yeah. Any doubts, guys? No, apart from Okay. no, For my personal sake, I want to take the feedback. ठीक है.
whether you are going to join this course or not, I don't know, but I will advise you one thing. Those who are interested in the cloud to make the career or they are looking to switch, first thing you should do, you create your account on the AWS console. Okay? AWS console पे I just want to show, actually we are lagging in the time, but let me show you. See, this is the console I'm talking. Just I have created, we will have one email ID and password, and we will log in. So this will be the page you will see here. So from that I was talking about the EC2 service. ठीक है, ये EC2 सर्विस होती है। यहाँ पे हम, यहाँ पे जो आपको चाहिए आप यहाँ पे इंस्टेंसेस बना सकते हो. So what I will, But sorry, ma'am, your page maybe is I not haven't visual. yeah, sorry, I got it. Let me share this. Let me show you. We are actually, we have lack of time, but I can show you in the short. Yeah. See guys, I think now you can see, right? Is it visible now? Yes, it, Yeah. See, what you have to do, you have to just type the AWS console in the Google. There yes. you have to create your account, and after that you will log in into that. Once you log in, you will see these pages. Okay? So these are the services, guys. Okay? बहुत सारी सर्विसेज है. यू कैंट इमेजिन, जैसे कंप्यूट एनालिटिक्स, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, डेटाबेस, जो हमने कभी सोचा भी नहीं इतनी सर्विसेज आपको एडब्ल्यूएस देता है. ठीक है? सो ऑल दीज आर द सर्विसेज. ये इनकी कैटेगरीज है. रोबोटिक्स, एआई, सिक्योरिटी, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग दे हैव. ये पूरी सर्विसेज है. फ्रॉम दैट एआईएमएल के लिए भी उनके सर्विसेज है. ठीक है? Industry Complete. work on this platform. Yes, this is the only platform. They will create one account for the client and they will log in into this, और यहाँ से services होती है. This is the EC2 service I was talking about. ठीक है, जो हम लैपटॉप या पीसी अगर मुझे बनाना है, so this is the my dashboard EC2 Elastic Compute Cloud, and from here I can launch my instance. ठीक है, just within 5 minutes I can launch my instances. Means nothing but you can consider right now it is at one laptop. ठीक है, Okay. it's running. Okay, let me stop this. So this is the console. So yeah, I was talking like those who want to do something in the, or they are looking, just create one account and start exploring that AWS console. Okay, so that you will have some idea, and once you get the interest, you can start learning it. Okay. So can we wrap up now, or do you have any question? Okay, sure. And Brijesh sir is here, available. I think he is there. Yes, yes. Tell me. Can you tell us about the courses of the fee? The Fee structure duration of course is 4 months, and we are charging 30,000. And initially for 15 candidate, we are giving some discount. So you can get registration within 25,000 in 2 or 3 installment. 6 candidate 25,000. already, yes, 6 candidate already registered for the upcoming batch, and you guys can ping admin number and get registration. Our motto is a practical learning. Okay, everywhere content is available, but Sakshi experience, highly experienced, is working in MNC, so they will guide you day-to-day activities and all. Till interview preparation, till selection, we can support you. Okay. And in our all the courses, we have to do the practical approach, so that maximum selection can be possible. It's only 2 days in a week, maybe Saturday or Sunday. Saturday, Sunday, 2 hours. And every session you will get the assignment, because practice can man perfect only. Okay, right. Yes. So Sakshi, you can, if you want, you can exit. Your session will be scheduled 8:30.
Yeah, yeah. Any Thank you, queries? everyone. Okay, Renuka? thank you very much for. Okay, thank Ma'am? you. The duration is 4 months, and for first 15 candidate, it will be 25,000. You can get registration early as possible. Okay. Thanks for joining today's session. Thanks, Deepak. Thanks to all. Thanks.